आपको बराह रास्त ले चलेंगे। दोशंबे में वज़ीर आज़म इमरान खान बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे हैं। Minerals, what else? Pharmaceutical growing sector in Pakistan. Huh? Logistics. Okay, that's news to me. So we have logistics as well. So. वज़ीर आज़म इमरान खान दोशंबे में बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त वो बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे हैं, जिसके बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोशंबे में वज़ीर आज़म इमरान खान बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे हैं। Cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market. And we hope, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. At the moment, our trade is minuscule. Mr. Usman Ali, you mentioned it's what, $80 billion? $80 billion? $80 million means that there's a lot of potential. So I can assure you that we will be giving you all the incentives. The government's job is to facilitate. We're already trying to facilitate our own business community, remove all the hurdles in their way, making it easier for them to do business. And inshallah, you will find whenever you come that the government will do everything to make it easier for you to do business. I believe that there's a question answer. Is there a question answer? I don't know. So, my commerce minister is here. I will be sitting with him. You can ask me any questions. We just wish and pray that finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there, so that there's better connectivity. And I will be meeting your president, and your president and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. And to my own business community, which is traveling here, I want to welcome you here, and I assure you that we will also be facilitating you. दोशंबे में वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि आज की तकरीब का मकसद पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताजरों से मुखातिब होना है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। कोयटा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है कि बलूचिस्तान में वुज़रा और MPs को मनाएंगे। हमारी पार्टी है, हम इकट्ठे चलेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करेंगे और इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। अपोजिशन ने तहरीक एतमाद उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, और सेनेटर साहिबान और MNA भी मेरे साथ हैं हमारी पार्टी के। हम जाएंगे, अपनी पार्टी के साथ मुशावरत करेंगे, जाम साहब से भी मिलेंगे और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा सर, अपने नाराज MPs को वज़रा को मना पाएंगे आप?
अभी तक तो ये आप लोगों की खबर है ना कि नाराज है। हम जाके बातचीत करेंगे उनके साथ और इंशाल्लाह बेहतर होगा, जरूर मनाएंगे हमारी पार्टी इकट्ठे मिलके चलेंगे। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को घर भेजने का मिशन, तहरीक अदम एतमाद के हामी हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कोयटा में अहम बैठक हुई। बैठक में 36 अरकान ने शिरकत की और 40 अरकान का नंबर होने का दावा किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को घर भेजने का ये मिशन है। मज़ीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस अहम बैठक के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को घर भेजने की मिशन की तैयारियां अपोजिशन और हुकूमत के दोनों रहनुमाओं ने मुकम्मल कर ली है। कोयटा में एक अहम बैठक हुई है जिसमें 36 अरकान सूबाई असम्बली शरीक थे, जिनमें हुकूमत के और अपोजिशन के दोनों मेंबरान थे, सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। इस मुलाकात में हुकूमत और अपोजिशन ने यह दावा किया है कि उनके पास 40 मेंबरान जो है वो सूबाई असम्बली के मुकम्मल हो चुके हैं जो जाम कमाल के खिलाफ है। जबकि हुकूमती रहनुमाओं ने कहा है कि अपोजिशन और हम मिलकर अब बलूचिस्तान में तब्दीली लाएंगे। जाम कमाल ने 3 सालों के दौरान बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, इस बार पीछे नहीं हटेंगे, अपोजिशन का भरपूर साथ देंगे। हुकूमती मेंबरान ने भी अपोजिशन को ये यकीन दहानी करवा दी है। तो ये एक बड़ी बैठक है और एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 33 जो है वो वोट लाजिम है। जबकि अपोजिशन और हुकूमत ने जो मुश्तरका दावा किया उन्होंने 40 मेंबरान का किया है। अब देखते हैं कि अदम एतमाद की ये जो तहरीक पेश की गई है, गुज़िश्ता इससे पहले भी कई बार अपोजिशन ने जो जाम कमाल के खिलाफ मुत्तहिद हुए थे मगर वो नाकाम हुए हैं। इस बार अपोजिशन दावा कर रही है, जबकि हुकूमत और सूबाई वज़रा भी उनके साथ है। साथ ही साथ स्पीकर जो बलूचिस्तान असम्बली के हैं अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो, वो भी अपोजिशन के साथ इस बार खड़े हैं। आज़ाद अरकान और दीगर पार्टियों के रहनुमा भी साथ है। तो अब स्पीकर और अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी मुशावरतों का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि जो रेजोल्यूशन पेश होगी असम्बली में वो पास होती है और उसके बाद जब अदम एतमाद की तहरीक की बारी आएगी तो उसमें जिस तरह अपोजिशन दावे कर रही है हुकूमत के साथ मिलकर कि हमारे 40 जो मेंबरान हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब देखते हैं, क्योंकि आज भी चेयरमैन सेनेट सादिक सुंदरानी जब कोयटा जाएंगे तो उन्होंने भी तमाम तर पार्टियों से राब्ते किए हैं, उन्होंने भी राब्ते किए हैं, मुशावरत इस हवाले से जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपने अपडेट किया। जबकि हुकूमत ने महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई। डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो चुका। सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। पहला मैंने खिताब किया तो मैंने कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। वजीर आजम ने महंगाई की दुहाई देते अवाम को ना घबराने का मशवरा देते देते 3 माह में 6ठी बार पेट्रोल बम फेंक दी। पेट्रोल 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। हुकूमत ने दरिया दिली की ऐसी मिसाल कायम की कि कौम हैरान रह गई। ओगरा ने पेट्रोल 1 रुपया लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी, लेकिन हुकूमत ने 2-3 नहीं इकट्ठे 5 रुपए बढ़ा दिए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपए 1 पैसा इजाफा किया गया, जबकि लाइट डीजल ऑयल 5 रुपए 92 पैसे और मट्टी का तेल 5 रुपए 42 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि मट्टी का तेल अब 92 रुपए 26 पैसे और लाइट डीजल 90 रुपए 69 पैसे में मिलेगा। 16 जून से अब तक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपए 74 पैसे इजाफा हो चुका, जबकि हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 28 पैसे महंगा किया गया। लाइट डीजल की कीमत 13 रुपए 4 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 12 रुपए 26 पैसे बढ़ाई गई है। तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सहाफियों के सवालात पर वफाकी वजीर असद उमर ने जवाब देने से गुरेज किया। सिर्फ इतना कहा कि जो लोग पॉलिसी साजी में मुलव्विस हैं उनसे पूछें। रिपोर्टर ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया तो बोले, अब आप सवाल नहीं मजाक कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इसके अंदर शामिल है फैसला साजी में उनसे सवाल पूछे। सर आप वजीर हैं, आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर
इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वजीर खजाना ही नहीं रहूँगा। आप क्या हुआ? आपने इस्तीफा दिया था। अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। संजीदा सवाल होगा तो बस छोटे भाई असद उमर ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे के सवाल को गैर संजीदा कहकर टाल दिया, तो दूसरी जानिब उनके बड़े भाई ने संजीदगी से जवाब दिया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को चोर कहते थे। अगर उनके फलसफे को माने तो सबसे बड़े चोर खुद इमरान खान हैं। देखिए जी, ये जितनी ये नाअहल और इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत ये है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम को जो प्लान बताया था और जो कंटेनर पर चढ़ चढ़ के कहते थे कि हम ये करेंगे, वो शेख चिल्ली वाली मिसाल है कि इनको कुछ ये इमेच्योर भी हैं, साथ साथ इनको पता भी नहीं था कि होगा क्या। जाहिर सी बात है, इनके अपने अल्फाज जब दोहराए जाते हैं तो उसको वो लोग कहते हैं यू टर्न, कि जी ये पेट्रोल बम फेंक दिया। पिछली हुकूमत में ऐसे ही कहते थे ना इमरान खान साहब, ऐसे ही कहते थे ना कि जी जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझ लो हुक्मरान चोर हैं और करप्ट हैं। तो अगर वही चीजें अप्लाई हों और हम सब मुरीद बन जाएं, जैसा कि आरिफ अलवी साहब ने कहा कि पूरी दुनिया को इमरान खान का मुरीद बन जाना चाहिए, तो फिर उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी को कभी मुरीद बनना चाहिए। तो फिर उन्हीं के हिसाब से सबसे ज्यादा चोर और करप्ट हुकूमत इमरान खान के इरशादात के मुताबिक खुद इमरान खान की हुकूमत है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि हुकूमत गरीब आदमी के बारे में कुछ नहीं सोच रही। ये नहीं देखा जाता कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से महंगाई कितनी बढ़ेगी। मैं यही कहूँगा कि और कोई तरीका है नहीं रेवेन्यू का, तो ये बेस्ट तरीका होता है गवर्नमेंट के लिए, तो ये बढ़ाया जा रहा है और रेवेन्यू में शॉर्टफॉल पूरा किया जा रहा है। तो गरीब आदमी की कोई कंसिडरेशन ही नहीं है इस गवर्नमेंट में, ना उनके लिए कोई सोच की जाती है, ना ये रियलाइज़ किया जाता है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज शाह खान का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और महंगाई से हुकूमत ने अवाम पर जुल्म ढाया। ऐसा जुल्म भेड़ बकरियों का मालिक भी अपने जानवरों पर नहीं करता। हुकूमत ने अवाम को भेड़ बकरियों से भी बदतर समझ लिया है। मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर इस मुल्क में जो महंगाई का एक नई लहर आई है और जिस बेरहमी के साथ मुल्क के अवाम को जो है इसमें झोंका गया है, मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत अगर कोई जानवरों का बाड़ा भी होता ना, भेड़ बकरियों का, तो उस पर भी इस किस्म का जुल्म करने से पहले 2 दफ़ा मालिक सोचता है। लेकिन शायद ये हुकूमत इस मुल्क की आवाम को बिल्कुल भेड़ बकरियों से भी परली तरफ गिनती है कि जितना मर्जी इनका गला घोंटा जाए, ये किसी सूरत जो है ये आवाज़ नहीं निकालेंगे। लेकिन हालात अब इस किस्म के हो गए हैं कि खुदा न खास्ता सड़कों पे खाने के लिए दंगे होंगे। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे दुशंबे, जहां पर पाक ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम इस वक्त जारी है। और बलूचिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल प्रोसेसिंग जोन 3 होना चाहिए, क्योंकि मादनियात के शुबे में और ज़रात और लाइफ स्टाइक में। थैंक यू खान जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम तौकीर उलग, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक Ministry of Commerce and TDAP for organizing this excellent business forum, which has provided us a gateway and it is paving the way to enter into CIS countries. In July, we went to Uzbekistan and Sri Lanka, and I would like to thank Prime Minister Saab for, taking special focus, and his presence has, not only for pharmaceutical but for all other sectors have provided an opportunity to look way forward to expand our export. I would like to take this opportunity, because Deputy Prime Minister is sitting here, on behalf of pharmaceutical industry, we are all set to come here because we have seen during the last 2 days lots of opportunities here. We have already signed 4 MOUs today, and the request from the government of Tajikistan is that the best way to provide quality medicines from Pakistan is the speedy registration of our products here. It takes more than 2 years' time to get our product registered. So if you can help as a special case on this occasion that we are all here, if you can, help us to get our product registered on timely basis and at a faster pace,
we will be able to bring quality medicine here that will not only increase the business, but it will also help your people. पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम इस वक्त जारी है। दुशंबे से बराह रास्त आप देख रहे हैं, जबकि इस वक्त क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जारी है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है कि 40 साल तनाज़ा उसके बाद अफगानिस्तान में अमन कायम होगा, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि ताजिक और पश्तून कम्यूनिटी में अमन के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत करें, हम भरपूर तरीके से आपकी मुआवनत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए ऐसा कहना था। इस वक्त सवालात के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जवाब दे रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं दुशंबे से, जहां पर पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम जारी है और इस अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब भी किया था। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने इंकशाफ किया है कि तालिबान के साथ काबुल में 2 हफ्ते दाखिल ना होने का मुआहदा था, लेकिन अशरफ गनी के फरार होने से मामला खराब हो गया। तालिबान ने भी अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी के बयान की तस्दीक कर दी है। तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंजर आम पर आ गए। मुल्ला बरादर ने तालिबान के दरमियान फूट और सदारती महल में किसी किस्म के तसादुम से मुतल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। अपने वीडियो बयान में तालिबान के शरीक बानी का कहना था कि वो कंधार में अपनी रिहाइशगाह पर सही सलामत हैं। तालिबान क़यादत के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि वो किसी काम के गर्ज से इस सफ़र पर थे, इसीलिए मीडिया तक रसाई मुमकिन ना हो सकी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। कराची में शदीद गर्मी है। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं। हाथी ठंडे ठंडे पानी में नहाकर खुद को गर्मी से बचा रहा है। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदा रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया बताएगा, गर्मी का जोर बढ़ता जा रहा है, क्या इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, कराची में आज भी शदीद गर्मी का राज है और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पारा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि गर्मी की जो शिद्दत है वो आज तक बरकरार थी, कल से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। इस वक्त हम कराची चिड़ियाघर में मौजूद हैं और आप मेरा कब में देख सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत के बायस जो है वो यहाँ पर मौजूद हाथी भी खासे परेशान है और इस वक्त जो है वो उनको यहाँ पर नहलाने का अमल किया जा रहा है और हाथी जो है वो अपने पूल में जो पानी से भरा हुआ है इस वक्त वहाँ पर खुश तरीके से जो है वो यहाँ पर पानी जो है वो अपने ऊपर डाल रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात और शाम तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। बादलों की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल आना शुरू हो गए हैं। लोकल डेवलपमेंट जो बादलों की होनी थी, जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की थी, उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, बादल बनना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि रात में जो है वो समुद्री हवाओं का आगाज़ हो जाएगा और कल से समुद्री हवाएं जो है वो दिन के औकात में भी ठीक है। बहुत शुक्रिया रबिया खान, आपने अपडेट किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त आप देखते रहिए 24 न्यूज़ एच।